Muslims who do not care about politics will be ruled by rulers who do not care about Islam. ये कॉल है तुर्की के 23वें वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्कशन फोरम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाई इज़ पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूथ। सियासत क्या है और नौजवान नस्ल का इसमें क्या किरदार है, और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ हैं कम्युनिटी 3 के ग्रुप 11 से फयाज इब्ने हुसैन। फयाज, यू कैन स्टार्ट नाउ। Assalamu alaikum, everyone. This is Fayaz Ibn Hussain, and I am from Community 3, Group 11, from Bangladesh. So I hope my Urdu and my whatever language I'm going to be using is not going to be disturbing for you. Anyways, thank you so much for giving me the opportunity to present in the discussion forum. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So as you already have mentioned that we have the topic, why is politics important for any youth, in today's presentation. So can you please put the learning objective slide? Yeah, thank you. So the learning objectives of this presentation was prepared based on the subject politics, and it was prepared by me just by heart, without really focusing on the task given, just by heart and the passion, that why are we losing on politics as Muslims, as human beings, where is the shortcoming? And I thought all the issues are centered around politics. So in this presentation, we'll be learning about what is politics, basically understanding it, analyzing current political structures that we see all around the world, recognize the importance and the role of youth in politics, mobilizing and galvanizing people, basically gathering people for collective action, how to gather people for collective action and how it affects. And obviously, we will look at religious context from the Quran, from Sira, inshallah. And hopefully, we will end up with creating political awareness, which I'm pretty sure all of you already have, but a little bit more of an understanding of what it actually means as a human being to do something for the entire world, not only Ummah, for the entire planet. So, yeah, thank you. So this is the first slide. What is politics? Now, politics, it has a lot of explanations and a lot of definitions have been given by different people about it. But if you come to terms, then it's very simple. It's just a very simple way of looking at things. Politics is about power and authority. And it is human beings always have created a system to live together. Now, ideally, individually, human beings should be good enough to live, to get together, to act on their own, to understand what is right and wrong from whatever is within them. But that never happens, right? We always, from Adam alayhi salam till now, we always try and create a structure. Family, society, country, and then the world. This is how this goes on. And we always try and create a structure where we all can live together under some sort of a system, some sort of guidelines, and some sort of rules and regulations. This has always been the case. And every philosopher, everyone, every prophet, messenger, everyone has given this message how to create this system. Everyone has their own idea of it, but system is mandatory. And it is all about authority and power so that a system can be run to make sure people together can live well. That's politics, nothing else. Please, can you go to the next slide? Yeah, current circumstances.
Now, politics in current circumstances have been corrupted. Corrupted. The idea of politics have been corrupted. That's the most unfortunate thing that has happened over the past 100 years or more than that, actually. But we can say around 100 years. When democracy have come into our shores way long, but if you actually believe that for the last 100 years, almost every country has more or less tried to adopt some sort of democracy. And that has actually created more differences, which democracy in ideal sense should have solved a lot of problems. It shouldn't have kept people away from politics. It should have involved people more into politics. But if you see, it has turned the other way around in the last 100 years. There are other various reasons involved, obviously, but if you see, democracy has created more problems than it has solved. And today's politics is nothing but a controlled system by a group of elites who lives in different part of the world. Nothing has changed from the so-called aristocracy, from the so-called sultanates. Nothing has changed. The idea of democracy, which was established, and I'm not blaming them, the people who established the ideology, the likes of John Locke and the other philosophers, and the French philosophers, French Revolution, which actually inspired this monarchy system to go away. Everyone, I'm not blaming them, they had this idea. But if you say, it is actually not changed. Certain group of people still make decisions, and that's how most of the people live, based on the decisions those certain people take. Only problem that democracy has created, it has actually created a false illusion on the people that we are in power. Nothing else. This is politics in current circumstances. If you can go to the next slide, we can see some pictures. I'm pretty sure. Yeah. These are organizations who run current politics. We all know about APEC. Last data that I saw, that 54 million was given to the Congress party in the last 23-24 period when Congress was in power. It was funded. And the APEC, State Street, Vanguard, BlackRock, I'm pretty sure that most of the people, not all of the people, most of the people don't even know who leads these organizations. We have an idea about APEC, but State Street, Vanguard, BlackRock, they almost control half of the wealth of the world, or even more than that to some extent. Exact data is something that will be given eventually. I'm pretty sure it is hidden, and a lot of resources are being, manipulated. But everyone agrees to this point that these three companies, and along with APEC, who fund so many things, and all the lobbies that we see, they are the real powers in the world. And this is how in current circumstances, politics is being run. Isn't it unfortunate? People power is being used by these corporations and lobby groups. Nothing has changed. Only lies have spread more. Yeah, please, next slide. Yeah. Now, why youth specifically? Why did I choose the term youth when in my title? That's a question, that's a very valid question, that politics should be for everyone, right? But one true thing is, youth can make that change which nobody else can. The uniqueness of the age and the emotions that age carries is something that no age, no other person can actually value. Only people in that age, I'm pretty sure a lot of us are in that age where it is there, and it will change. It is supposed to change when you grow up and when you are above 40. It is just human psychology. Everyone knows that it is supposed to change.
you will get more stable, you will get more realistic, so-called realistic. Youth creates such uniqueness, unique energy. I'm sorry, the unique energy that youth creates is unparalleled to any change. So, yes, today's youth, unfortunately, we all are not supposed to be passive, but we are. We are not directly or indirectly changing things which we should be changing. We are not writing policies. We are not making social changes. And I always believe that we are chicken hearted. We don't have the courage which previous generations had. And it all changed for me last July, August 2024, when I witnessed myself in my own country living here. We all saw people of all my age. We all were more or less on the streets, on social media. We all fought a war against a sitting government. And it was only possible because of youth. And I saw myself with my own eyes the power of youth. Only before that, I only saw it on history books, read it in history books, saw it in different documentaries and movies, but I saw that with my own eyes. I saw people dying, and while dying, they're saying, please make sure, whatever ideology believed in, they all believed in freedom. They said, make sure the country is free. I've seen that. Please, if you can go to the next picture, the next slide, we can see some pictures, inshallah. Yeah. This Bangladesh photo that you see over here, it is based on the 2024 revolution. I witnessed myself with my own eyes. We all know about the Chinese revolution which took place and the storm it, that took China just out of. I mean, the government was just, oh my God. So many people were killed in China, and we all know the Tiananmen Square incident. I'm pretty sure most of you do. And the French Revolution, Palestine is Palestine, and Palestine is a public issue only because of the youth of Palestine, more or less. I'm not really demeaning anything, but youth of Palestine and social media, the use of it has created so much more public awareness for Palestine, which a lot of other countries who are facing the same issues which Palestine is facing have not been able to create, which Palestine has been able to create hands down. And that is only because of youth, by the way. Youth can create that. Trust me when I say that when any Bangladeshi, anyone who is in this meeting will, I'm pretty sure, will understand what I'm saying. We saw that. We literally saw that with our own eyes in front of us taking place. And we have seen a sitting establishment running away because of the power of youth. Alhamdulillah. Anyway, please, next slide, please. Yeah, politics. Best way to galvanize people, to gather people, to collectively solve problems of everyone. That's how you do politics. Politics means actually, by the way, a lot of people, I'm pretty sure, will connect to it. Politics solves problems, does not create problems. Solve problems. Politics doesn't. Politics doesn't, is not a profession by any means. It is a system. It is supposed to be there. We are nothing without politics. We are nothing without politics. And politics is the only way that can actually galvanize and mobilize people together for a change. You come together, make sure something happens. Something really must happen. And that's how we can make a change, is through politics. The only way we can make a change is through politics.
People come together for a cause, and cause can only happen through politics. Saw that with my own eyes, inshallah. Saw that with my own eyes. Alhamdulillah, saw that with my own eyes, and I can tell you, being a ummah of Muhammad, if we collectively don't solve problems for a goal, we will not be able to face our Prophet and our God on the day of judgment. We will not be able to face them. I'm guaranteeing you, I don't know how will I face my Prophet if I die today. Because I've not done enough. It's not about changing something, because that's something God will do. It's about not doing enough, and I've not done enough. Please, and one thing that is going to be that I forgot to mention on the previous slide, which probably you have read already, is that we have led mundane lives of the American dream of house, cars, so-called individual freedom for too long now. It's time to give it up. It's time to give it up. Enough of it. And for the cause. And politics is the only way to get that cause. Please, can you please change the slide? I think I've mentioned all this in the, yeah. Yeah, please, next slide, please. Yeah, this is what I was looking for from Plato. If you do not take an interest in the affairs of your government, then you are doomed to live under the rule of fools. Absolutely. Absolutely. And this message is straightforward, goes to the people who say that politics is not for me. Power is maybe not for you. Politics is for everybody. Please, that's something that we cannot afford to lose. Next slide, please. Lessons from Islamic history. The greatest event that took place during that time, probably in any time, was the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the greatest man on the planet Earth. And when he died, we all know what happened. That Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu declared, by Allah, the messenger of Allah has not died. He has only gone to his Lord as Musa alayhi salam went to the Mount Sinai, and he will return. He couldn't believe, a man like Umar ibn Khattab radiallahu anhu couldn't accept the fact that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has passed away. But if you can go to the next slide, please. What happened afterwards? What happened afterwards? What did Abu Bakr radiallahu anhu say and quoted from the Quran? If you read the meaning, I'm going to only read the meaning because of time constraint. And Muhammad is no more than a messenger. And indeed, many messengers have passed away before him. If he dies or is killed, will you then turn back on your heels? And this ayah was revealed, we all know, when Prophet was living. We cannot take this for granted. Mission continues. System continues. We all know Sahabas, first thing the Sahabas did, Umar and Abu Bakr radiallahu anhu, is to make sure a governance system is not compromised. Sharia system keeps continuing. First thing is to form a government. That is the most important thing. How can we forget that? Please, next slide. Yeah, from the Quran. This is Surah As-Saf, ayat number 9. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لا يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. He is the one who has sent his messenger with true guidance and the religion of truth, making it prevail over all others, and even to the dismay of the polytheists. Making it
prevail over all others. Deen, kulli, something we must realize. That's how power is. Power is so important, and power can come only through politics. Politics comes with our actions, and our actions come when we are determined. It all falls back. It all falls back to our determination. We have to understand that very few people can realize what we have already realized. Trust me. That doesn't mean that we get any leeway, or that doesn't mean that we have any more power. It just means we have more responsibility, which Sahil sir keeps saying. We have more responsibility than any human being on the planet. So I urge everybody at the end of this presentation to please develop more political acumen, create together for a specific purpose. For past 100 years, more than anyone, we have realized, Muslims have realized that hyper individualism has taken over the world. Solve the problems of the world through politics. That's the only message from this presentation. If you take one line, this is the one line that we have can make. This is something that I urge everyone, and I urge myself to do as well, inshallah. I hope that everyone can take some benefits from this presentation. And inshallah, if you have any questions, please do ask. I'm all here, all ears, and I'm all ready to answer them. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you, Fayaz. Now we will move to Q&A. फीडबैक फॉर्म आपके साथ चैट में शेयर हुआ है, काइंडली उसको ज़रूर फिल कर दें. हया. Assalamu alaikum. Can you hear me? Hello? Yes, sister. वालेकुम Yes, sister. अस्सलाम. I Yes, can. हया. आपने प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए. जिस गवर्नमेंट की आप बात करें, विच गवर्नमेंट, लाइक हम तो यहाँ पर रहते हैं, मतलब जैसा कि मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो पहले तो वहाँ ये बहुत ही नामुमकिन है हमारे लिए एज अ गर्ल, एज अ वुमन टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ वेस्ट में रहते हैं, तो हम कैसे इनकी गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, ये पहला सवाल. और जो दूसरा सवाल है कि हम एज अ गर्ल, एज अ वुमन कैसे पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते, क्योंकि यहाँ से तो रिस्पांस यही मिलता है कि औरत को घर में बैठना चाहिए. उसके लिए बेहतरीन जगह तो जैसे हदीस में भी है कि उसके लिए बेहतरीन जगह घर है, घर का एक कोना है, मतलब तो उसको ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए. या पॉलिटिक्स, अगर हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते तो हम तो फिर पब्लिकली मतलब हम आम आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक हम तो पब्लिक में फिर आते हैं ना, हमें और भी बहुत से काम करने होंगे, फिर वहाँ पर तो मर्द भी होते हैं. तो मुझे यहाँ पर मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि इस वक्त हम एज अ वुमन, एज अ गर्ल किस तरह का कैसा फैसला ले लें और कैसे इन पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर ले. आई होप कि Yes, sister. मेरे सवाल क्लियर है. Ji. Thank you. Thank you so much for the question. Lovely question. My simple answer to this question will be, अगर शरीयत है और खिलाफत है, तो एक बार के लिए मैं मान भी जाऊं कि जो खवातीन है, जो women है, उनकी responsibilities is limited to घर एंड फैमिली एंड एवरीथिंग. अगर वो है तो आइडियली वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, टू सम एक्सटेंट आई कैन अंडरस्टैंड. अभी क्या वो है? हम सहाबा के टाइम पे चले जाते हैं. जब सहाबा के टाइम पे खिलाफत नहीं आई थी, जब there was a push, there was a push for to establish the system, तब women ने कैसे contribute किया? That's something women should tell. Actually, I'm not a good enough person actually to say this. Women themselves should actually present कि हम politics कैसे कर कहीं पर. And that's not democratic style politics. कैसे लिखे, क्या लिखे, कहाँ पर लिखे. Somebody actually wrote
कि पब्लिश करे, पेपर्स लिखे, ब्लॉग्स लिखे। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सोशल मीडिया की वजह से हो, वेबसाइट्स की वजह से हो, टेक्नोलॉजी की वजह से बेसिकली हमें मिल रही है। उसके बावजूद कहीं पर भी अगर विमेन protected nahi hai and men themselves are failing in their job, then it's responsibility on the women to come up and do something which they are also supposed to. अगर शरीयत नहीं है, वैसे मर्द हुकूमत में नहीं है जो होने चाहिए, तो बिल्कुल औरतों को आना ही पड़ेगा, बाई हुक और बाई क्रूक। वो कैसे करेंगे? वो पब्लिक पॉलिसी में आएंगे। हाँ, बेसिक रूल्स ऑफ इस्लाम को ब्रीच कर कर कोई नहीं आ सकता, लेकिन रूल्स में रहकर कर सकते, क्या कर सकते, कौन सी चीजें कर सकते, ये तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन करना तो पड़ेगा डेफिनेटली, पब्लिश करके हो या फिर मूवमेंट्स करके हो। If I'm not wrong, there is a woman in Balochistan who is leading a movement against the Pakistani government. I don't know if I correctly, a Pakistani can correct me if I'm wrong, but I've seen that. I think, I don't know, I don't remember, I forgot her name, but I saw that with my own eyes. She was a leading movement for her own people, a Muslim woman. So yeah, she has been abducted by the authorities, rightly so. According to the authorities, she should be abducted. Surprisingly, she was not abducted before. Now she is abducted, rightly so. Yeah, absolutely. Your establishment, our establishment, everyone's establishment will never compromise on their power, and that's where women like her is the greatest inspiration. Afia Siddiqui is the greatest inspiration. Anyways, please, I hope I've answered a bit. Rest, you guys, you women must find out your own ways in your own countries and your own places how to do it, but you must do it. As long as Khilafat is not established, you are not getting away from it as well. Allah is not letting you go away, for sure. That much I can say. Anyways, Okay, let's take question. next question. Asad. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Walaikum assalam. So I'm from Bangladesh. So what you said is really inspiring. But I have a question. So this movement that was led in Bangladesh has the purpose. So this purpose, if we want to do politics, then we have to come to a single purpose, or else it will be scattered. Like everybody will be scattered. So what is like your thought process to how to bring people into one single purpose? That's my question. Yeah, thank you. So, walaikum assalam. Thank you so much for asking this question. If you are from Bangladesh, you know recently what happened in Bangladesh in July. What was the single purpose behind it? If you can answer me, do you know that? The single purpose behind it was very simple: freedom. Yeah, a single Everyone purpose wanted. Yeah, it was freedom. was It was to freedom. get rid of the fascism and to be Yeah, free. yeah, absolutely, absolutely, absolutely. Great, absolutely. So get rid of that for what? Freedom. Everyone wanted freedom in their own way. Everyone was there. Liberals were there. Islamists were there. So many. Everyone was there. Everyone came onto the streets for one thing. We will not let this establishment oppress us anymore. It's simple, right? Yes. Now take everything from Sira. Sira started how three things happen for a movement. First, you do writings, or you write, or you give dawah publicly by speaking. Secondly, that's one way of leadership. That's the idea generation. This is what we want. Everyone has started with. Second, create a fanatic that is a leader, a fanatic, a mad leader who will fight, who will lead the fight. Third, when you win, create an administration who will run the government. These three things are three different things. Three very different things and distinct things. Only leader in the world who did three things perfectly was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Except that nobody else has been able to do so. Three people are needed for three jobs. Mashallah, we have got enough people. So we just need to start from one.
number one process actually we don't need to do because we already have the plastic. So yeah, thank you so much. I hope I've answered you that this is the process which we get from Sira process. Thank you very much for the answer. Yeah, next question, please. Yasir. जी अस्सलाम वालेकुम brother. Walaikum assalam. The question that I have is related to how to involve different age groups in bringing about the change that has the same purpose. Just like the question that previous brother asked, there should be a single purpose, and I think it's not like just one age specific. It can involve different age groups as well, especially when you mentioned Sira. We have the example of Sira where the involvement from different age groups was there as well. How do you think we can involve different age groups along with the youth to be a part of this change process? Yeah, thank you. Walaikum assalam, first of all. Thank you so much. Yeah, different age groups. When it comes to anyone who is below the age of the youth, or basically you can say children and the teenagers, the ones who are growing with the will be an adult very soon. Children, I mean, very easy. I mean, they are simple piece. They will just follow what the adults are doing. So let's not talk about children. Let's talk about people who are above 35, above 40. 40 is the cutoff age. So let's say above 40. The people above 40, they are not going to change what they are believing no matter what we try. Unless someone is miraculously given hidayah by Allah subhanahu wa ta'ala, that's different. Someone who has believed in something till 40 is very difficult to change him or her after 40. That's what we all experienced during this movement itself in Bangladesh in 2024. So the solution, in my opinion, again, I'm just giving my opinion over here, is in making sure that youth participates and to prove the ones who are above 40, who are already aligned with the mission. There are so many people above 40 who are aligned with the mission. So that's different. But the ones who are not, the only way you can actually touch them is through emotions. That's what I've seen with my own eyes. When even the 45, 50-year-olds away from politics, passive people, no courage, they said, my people of the age, or the children of the age of my kids, are being shot. It's not bearable. And that's the exact emotional words which were used by all of us to our parents, that what if it was me? Today, if you don't let me go, tomorrow they will come after me. They will not let anybody go. They're that cruel. So yeah, in my opinion, emotions is the greatest way to make sure someone above 40 can come to your ideology. They will not believe in your ideology, but they may emotionally connect if you are genuinely, and that, by the way, goes even for your own family, because it has to be started from your own family. So if you genuinely give your blood and sweat for your mission, then there is a huge chance, inshallah, that they may not align with your purpose, but they will definitely not stop you, and they may even join you, but just by the emotional connection. Can happen, has happened, seen that happen. So yeah, in my opinion, that's the practical solution. Next question, please. ओके, सफ़ीउल्लाह का सवाल लेने से पहले चैट में आपके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर हुआ है, उसको लाजमी फिल करें ताकि आपकी जो भी फीडबैक्स और सजेशंस हैं वो हम तक पहुंचें और फ्यूचर में हम डिस्कशन फोरम के सेशंस को मज़ीद बेहतर बना सकें।
इस टाइम 74 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी फीडबैक फॉर्म में 74 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। ओके सफ़ीउल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, हेलो। आ रही है। भाई मेरा मैंने थोड़ी सी मतलब मैं कंफ्यूजन थी कि आपने कहा है कि जो पावर है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से पावर आती है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पहले पावर आता है, फिर बाद में पॉलिटिक्स आती है, क्योंकि एक पावरफुल बंदा ही जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में या जो हमारा प्रीवियस वर्ल्ड था, जो वहाँ के रूल्स थे, जो भी असूल रहे होंगे, ठीक है, हमने प्रैक्टिकली तो ये देखने में है जो पावरफुल बंदा है वही पॉलिटिक्स करता है और वही बाद में अल्टीमेट पावर में आता है। एक पहले से जो मतलब वीक बंदा है वो तो कभी पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, पहली बात है। ठीक है, हमेशा एक पावरफुल बंदे की ये गेम है कि पॉलिटिक्स करके वो रूल्स बनाता है और हर चीज उसके मुताबिक चलती है। और दूसरी बात आपने कहा ये दुनिया हाइपर इंडिविजुअलिज्म की है, तो मैं तो नहीं इस बात को मानता, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस तरह जो नैरेटिव्स की दौड़ है, एक बंदा जब नैरेटिव एक कोई लीडर उठाता है, पॉपुलर लीडर, तो पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। तो इंडिविजुअली तो कोई भी नहीं सोचता। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस वर्ल्ड में देखें तो सबसे बड़ा ज्यादा पावरफुल जो पॉपुलर लीडर था वो हिटलर था। ठीक है, तो उसने वो तो हाइपर वहां पे तो इंडिविजुअलिज्म हमें नजर नहीं आया, क्योंकि जो डॉक्टर्स फिलोसफर जितने भी थे वो तो हिटलर के पीछे लग गए थे, उसके पॉपुलर नैरेटिव के पीछे। तो हर बात तो ऐसे ही होता है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया है, तो वो भी तो पॉपुलर नैरेटिव की बेस पे आया, तो इंडिविजुअलिज्म कहाँ गया? मतलब एक जो बात यहाँ पे ये है, तो इंडिविजुअलिज्म तो कभी डोमिनेट कर ही नहीं सा रहा। हमेशा जो एक पावरफुल बंदा पहले पावर के जरिए पॉलिटिक्स में आता है, फिर वो अल्टीमेट पावर हासिल करता है, फिर अपने बयानिए के जरिए लोगों के जहनों को मैनिपुलेट करता है। और बाकी बात रही आपकी ये जो आपने बांग्लादेश की और चाइनीज रेवोल्यूशन की मिसालें दी, तो मेरे भाई ये कौन सा पॉलिटिक्स है? तो रेवोल्यूशन और पॉलिटिक्स में तो जमीन आसमान का फर्क है। पॉलिटिक्स के जरिए आप जो गवर्नेंस जो उस कंट्री का सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम, उसमें पेनिट्रेट करते हो और और पेनिट्रेट करके उसमें तो पावर हासिल करते हो। या जो रेवोल्यूशन होता है, तो रेवोल्यूशन में तो मतलब एक नजरिया दूसरे नजरिए को बाय फोर्स रिप्लेस करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने एग्जाम्पल कैसे पॉलिटिक्स के केस में मैच करती हैं। तो ये मेरे 3 सवाल हैं, इसका आंसर कर दें। जी थैंक यू। पहला सवाल जो था कि पावर और पॉलिटिक्स, आप पावर में पॉलिटिक्स के बिना कैसे जाएंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, अनलेस यू आर बॉर्न इन अ पावरफुल फैमिली और पावरफुल प्लेस जहां तक ऑलरेडी आपको पावर मिल रही है, हाँ ये आप कह सकते हैं कि उनके बिना कुछ नहीं होता। उनमें से किसी ना किसी को आपको अपने आइडियोलॉजी में फिट करना पड़ता है, राइटली सो, आई एग्री। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर भी पैदा हो सकते हो, कहीं पर भी हो सकते हो, लेकिन आपका जो थॉट है, कार्ल मार्क्स इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, जो आपका थॉट है वो बड़े बड़े पावरफुल लोगों के तक पहुंच जाए और वो उसी आइडिया को लेकर चले, हो सकता है। सो ये काइंड ऑफ प्रोसेस है कि आप कैसे जाओगे पावर तक। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि पावरफुल लोग जरूर आपके अंडर, आपके फिलोसफी के अंडर आने चाहिए कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, जिसे लॉबी कहते हैं। ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से नहीं हो सकता। जहां तक बात है आपके दूसरे सवाल की, इंडिविजुअलिज्म हाइपर इंडिविजुअलिज्म, आपने कहा कि हाइपर इंडिविजुअल नहीं है। कहाँ पर नहीं है हाइपर इंडिविजुअल? कैपिटलिज्म आने के बाद हाइपर इंडिविजुअल ही तो है ना सब कुछ। अगर हाइपर इंडिविजुअल नहीं होता ना, सोशलिज्म में हाइपर इंडिविजुअल नहीं था, आई एग्री विथ यू कि जब तक सोवियत यूनियन थी तब तक कहीं ना कहीं फाइट तो जारी थी। उसके बाद जब यहाँ पर भी रिलैक्सेशन आई है, वहां पर तो हाइपर इंडिविजुअल सोसाइटी बन चुकी है, इनऑर्गेनिक बन चुका है सब कुछ। टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म साथ साथ आए तो सब कुछ तो इन हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक ही बन गए। सार को एक घर, एक गाड़ी, औरतें, ये सब ही तो चाहिए ना। तो हाइपर इंडिविजुअल नहीं था सब कुछ? अगर सब कुछ हाइपर इंडिविजुअल नहीं था तो कैसे सॉल्व कैसे हुआ सब? हाँ, अभी शायद नैरेटिव बदल रहा है,
बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाइपर इंडिविजुअल, लेकिन पिछले 2 जनरेशन स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पे और कहीं पर भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनी कंट्री वेयर देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, वहां पर तो हाइपर इंडिविजुअलिज्म ही था ना, हाइपर इंडिविजुअलिज्म ही था, आप चेक कर लो। और जहां तक आपके तीसरे सवाल की बात है, रेवोल्यूशन और पॉलिटिक्स, आपको एक चीज समझनी हो, लॉबी कर कर चीजें खत्म नहीं होती, लॉबी कर कर चीजें खत्म होती है। शुरू रेवोल्यूशन से ही होती है, मतलब स्ट्रीट से ही होनी पड़ती है अगर आपको आइडियाज चेंज करने होते, चाहे वो स्ट्रीट्स। अभी तो प्रोटेस्ट करते हैं ना लोग, जो मैं भी उसके खिलाफ हूँ, प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, खूनी इनकलाब आना चाहिए, देयर शुड बी एक्चुअली अ वार फॉट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद इट। पर लेकिन स्टार्ट लोग अभी यही से करते हैं तो यही से करते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन तो ऐसे ही स्टार्ट होता है। यू हैव टू बी ऑन द स्ट्रीट, यू हैव टू टेक ब्लड on your body, you have to create blood and you have to take blood to make sure the other person is bloody and you are bloody as well. लोग मरेंगे, उसके बाद आपको वो मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप रूल कर सकते हो या फिर आप लॉबी कर सकते हो। लॉबी करने के लिए भी तो आपको स्ट्रीट्स को दिखाना तो पड़ेगा ना कि आपके पास वो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है। सो आई थॉट, आई थिंक, आई होप आई मेड इट क्लियर। आपकी जो थॉट है वो आपको वेरी गुड थॉट्स, लेकिन शायद मेरे साथ आपका थोड़ा डिसएग्रीमेंट होगा इस चीज। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, उससे Fayaz, for पहले answering those questions. Let's ओके, take Anas' question. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have a question regarding politics. Okay, if we see there are political parties, and this is the face of politics. Different political parties in every country, and behind them there are deep state establishment, which actually runs the politics. Where a youth should go, they should come ahead and join the political parties, contribute their efforts, and come at the top or gather up so much in quantity or quality where they can change the system, or they should go behind the back and join the establishment. Ideally Thank do you. both, have people in both departments so that you have public face as well as someone behind the back to run the show. Create a lobby to run behind and also have a public face. Muhammad Ali Jinnah is a classic example. He did both perfectly, mashallah. ठीक है, I hope if you know his history, you know more than me. You guys know more than me. Classic example. He created the politics in streets. He showed the power to his, I won't say enemies, maybe to his people who were against him. He showed his power, and also he had connections, powerful connection. He made sure he did lobby in the powerful places, powerful both financial and political places. Classic example of understanding how the law works, and someone who has never been jailed and leading a revolution. So classic example that even that is also possible. So if you really fear jail, and if you really, anybody really fears jail and really fears tortures or whatever, that's a good example. Anyways, but just saying that, I'm just saying that that is one example, that how can you create a public space, also you can go behind the back and create that or push that lobby. Both is possible. Ideally have people for both places. That is example good. You don't need one person to do both. You can have multiple people to do different things. Yeah, next Thank you. question please. Mariam. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मैंने थोड़ा देर से लेक्चर ज्वाइन किया है. मेरे ना कुछ क्वेश्चंस हैं. सर साहिल ने लॉबी से रिलेटेड बात की है कुछ अपने सेशंस में. लाइक ही सेज कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हों, अपने मतलब कुछ 4 उन्होंने हमें टारगेट्स दिए हैं, उन पे वर्क करें, फाइनेंशियली, सोशली, मॉरली एंड आई गेस साइंटिफिकली. और
इस तरह से हम लॉबी बनाएँ, और उन्होंने कुछ बात की थी कि एक लॉबी ही लॉबी से फ़ाइट कर सकती है, और वो लॉबी, उस लॉबी के ज़रिए हम खिलाफ़ा एस्टेब्लिश करेंगे या फिर इस्लामिक सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे, जो मैंने समझा है उनके लेक्चर से। और फिर उन्होंने एक बात की थी कि वेल, ये जो 4 चीज़ें सर ने बताई, तो मैं एक बात कर रही थी, एक टर्किश फेलो थे, मैं उनसे बात कर रही थी, और जैसे कि मैं सर साहिल के पर्पज़ से उनको आगाह कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप लॉबी की बात कर रही हैं, जब लॉबी यानी कि आप सिस्टम को इम्पोज़ करेंगे, लोगों के दिलों में फिर भी इस्लाम नहीं कायम होगा, और ये सिस्टम जो है ये एट द एंड जाके ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब लोग बागी हो जाएँगे। तो मैं यहाँ पर स्पीचलेस हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम सिर्फ़ ये जो लॉबी की बात है, फ़ैसिनेट तो बहुत करती है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि हम वो फ्रूट हासिल कर सकेंगे जो हम चाह रहे हैं। काइंडली प्लीज़ आंसर दिस। अच्छा ठीक है, मतलब although this is a question feed only Sahil sir would be able to answer or he will be fit, ओके, लेकिन फिर भी ऑलराइट। anyways, if I can give my opinion regarding it, since the topic is related, only opinion that I can give over here is what sir is talking about is a solution for current scenarios and practically what is achievable in short term. Okay, ओके, in terms of creating that और लोगों के दिल में जाना और लोगों के दिल में इस्लाम तक पहुंचाना, वो तो ज्यादातर लोगों के दिल में कभी भी वैसे भी नहीं आए, लेकिन गवर्नेंस ऐसे जरूर हम कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो पावर में जाने के बाद आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस हम ऐसे कर सकते हैं जो लंबे टाइम तक आपको वो सिस्टम रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप एक तो है खिलाफत जो एकदम पीक ऑफ द पीक है, जो कि साहबा का टाइम, वो टाइम डिफरेंट है, लेकिन जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो कि 300 या 400 साल तक एकदम अपने दबदबा से जिन्होंने किया था वो थे ऑटोमन एम्पायर। अगर हुँ, आप हुँ, उनको स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि एफिशिएंटली गवर्नेंस कैसे मेंटेन करते हैं। लोग बागी होंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो काउंटर कैसे किया जाए। तो ऑलराइट। आई होप दैट आई कैन बी ऑफ तो सम हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये जरूर लेकिन सर, बिल्कुल अ बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर भी तो लास्ट में आके इसी वजह से टूट गई ना, बिकॉज़ लोग बहुत ज़्यादा बागी हो गए थे। वो समझ रहे थे कि ये खिलाफत नहीं है, बल्कि समझें मौरूसियत है। वो इसको मौरूसियत समझने लग गए थे। तो हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए ठीक थे ना, लोग ठीक थे, वो फेल किए, उन्होंने फेल किया बिकॉज वो एफिशिएंसी फेल हो चुके थे। वो एक तो वो इस्लाम से बहुत दूर चले गए थे, एक तो एक चीज है, देन वो अय्याश बन गए थे, लेकिन तो सर, हम बिल्कुल भी अगर सुल्तान अब्दुल हमीद को स्टडी करें, तो वो तो अयाश नहीं कह सकते हम उनको। ही वाज़ अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। सो अ, नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक मैसिव गलती की थी मेरे हिसाब से, कि उन्होंने उनके ओके, आर्मी को वीक कर दिया था ताकि अच्छा, उनके आर्मी उनके खिलाफ रिवॉल्ट ना कर सके। ऑलराइट। ठीक है, अब अगर हुँ, हुँ। स्टडी करो तो आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सुल्तान अब्दुल हमीद अगर अच्छी मतलब बड़े ब्रेव लीडर थे भी, उनसे पहले 2-3 जनरेशन ऑटोमन एम्पायर ऑलमोस्ट उन्होंने खत्म ही कर हुँ, दिया था, दे वर हाँ जी, डन फॉर। ठीक है, तो सही। एफिशिएंट गवर्नेंस कैसे करते हैं वो ऑटोमन एम्पायर ने दिखाया था, टिल आई थिंक सुलेमान द मैग्निफिसेंट तक आप या देख सकते हो। उसके बाद भी यस। थोड़ा बहुत, उसके बाद भी 100 साल उन्होंने अच्छी तरह से किया। और अगर हमारे हिस्से में दिखना है तो आप दो लोगों को देख सकते हो। एक तो आप देख सकते हो अकबर, ऑल दो अकबर के रिलीजन के बारे में सबको मतलब उनके ईमान के बारे में काफी लोग हैं, लेकिन एफिशिएंटली उन्होंने रूल किया था। और डेफिनेटली औरंगजेब को देख सकते हैं हम, टीपू सुल्तान को हुँ, देख सकते हैं। ये चीजें, ये लोग हैं जिन्होंने दिखाया कि एफिशिएंटली कैसे रूल करते हैं। कुछ ने लंबे समय तक सही। किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली वो सोल्यूशन है। लोगों के दिल में नहीं हुँ। आएगा, आई एम सॉरी, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं सर, आ फिर सकता। इसके सर, बात वही है, मतलब प्रैक्टिकली हम शॉर्ट टर्म में अचीव कर लेंगे, बट जैसे कि आपने कहा, सर साहिल इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये तो आई एम शॉर्ट सॉरी टू टर्म में कट ही। यू हियर। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आ रही जी है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई वुड लाइक टू आंसर मरियम, थोड़ा-सा मैं यस। आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी
कि आप इसको लेके थोड़ा सा पेसिमिस्ट उसमें सोच में जा रही हो। आप ये सोच रहे हो कि हम क्यों करें जबकि ये चलना नहीं है, राइट? Yes, kind of. Yeah. So this is not our issue. I think this is not our problem कि वो आगे चलना है या नहीं चलना। वो तो ऑब्वियसली जब हम कोई अच्छा काम करेंगे अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की तरफ से वो चीज़, उसका रिजल्ट क्या आना है वो अल्लाह को पता है, ठीक है? और वो Yes. कितनी देर वो चीज़ चलनी है वो भी अल्लाह को पता है। ऐसे तो फिर कोई भी आप पिछले भी अब खिलाफत भी देख लें, वो भी तो ख़त्म हुई थी। वी कैन नॉट से कि क्योंकि खिलाफत क्योंकि आगे जाके ख़त्म हो गई थी तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो ये इसलिए वाला हम जो एफर्ट्स नहीं छोड़ सकते, राइट? यस, हाँ, इट्स हाँ। फर्ज ऑन अस ना, तो हमने तो अपना काम करना है। सही। अब तो इसमें अच्छा, सही फिलोसफी, आंसर या मिल ये गया। तो, थैंक्स। हाँ, फिलोसफी राइट करें। कोई आपको कहता है कि ये चलेगा नहीं, तो आप उससे कहें कि भाई आपका काम नहीं है, हमारा काम चलाना नहीं है, हमारा काम है काम करना, ठीक है? सो चलाना अल्लाह का काम है। ओके, सही। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप दोनों का। जी थैंक यू। ओके, मोहम्मद फाहद, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने कहा था कि हमें पॉलिटिकल एक्यूमेन डेवलप करना है, अचीव करना है। तो आप ज़रा बताएंगे कि ये सिनेरियो क्या है? हाउ कैन वी अचीव, हाउ कैन एन इंडिविजुअल अचीव पॉलिटिकल एक्यूमेन? प्रोसीजर क्या है, ये सिनेरियो क्या है, आउटलाइन क्या है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इसलिए थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एक्चुअली आपके सवाल में थोड़ा बहुत है। आपने ये सवाल किया है इसका मतलब है आपके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन आ चुका है। पॉलिटिकल एक्यूमेन बेसिक चीज है, एक चीज है कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझे दुनिया में कुछ करना है। दैट्स पॉलिटिकल एक्यूमेन डन। मतलब उसके बाद आप में तो एक्यूमेन तो नहीं डेवलप होगा, मतलब उसके वो आप लाइन तो ठीक है। और एक्यूमेन डेवलप करने के लिए आपको फिर प्रोसेस जानना पड़ेगा कि जो सही है, जो मेरे हिसाब से सही है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, क्या वो दुनिया में प्लेस्ड है या नहीं। अगर वो दुनिया में प्लेस्ड है तो फेयर है ना, मैं तो प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा फिर। लेकिन अगर वो स्टैब्लिश नहीं है तो वो स्टैब्लिश करने का काम होगा। तो वो स्टैब्लिश करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इल्म कितनी लेनी पड़ेगी, लॉबीज कितनी बनानी पड़ेगी, दोस्तियां कहाँ करनी पड़ेगी, जाना कहाँ पड़ेगा, कहाँ पर घूमना तो नहीं, मतलब कहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, कैसे बिजनेसेस करने पड़ेंगे। ये पूरी तरह से एक रिवर्स इंजीनियर करके अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलप। आई होप आई बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट फैसल का सवाल लेंगे। आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ अपने रियल नेम के साथ दोबारा ज्वाइन करें, फिर हैंड रेज करें। थैंक यू। ओके, फैसल इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मैंने पूछना था, अगर हम घर में इस घर से, वो जैसे सर साहिल कहते हैं कि अपने बाप को नहीं फतह कर सकते, तो बाहर की बातें छोड़ो। वो जब आप बात करने लगते हो तो पॉलिटिक्स में तो आप आ गए हो, लेकिन बड़ों को समझाने के लिए हमें उनका लेवल चेक करना नहीं पड़ेगा, या उनको किस तरह समझाएंगे? आई थिंक जो सर, मैं जितना समझाऊं सर साहिल को, वो ये नहीं कहते कि बाप पे खत्म करो, वो कहते बाप से शुरू करो। तो बाप या माँ हम्म से ऑब्वियसली उनका हक सबसे पहले, तो उनसे डेफिनेटली शुरू करो। और हम्म वो अगर आपसे फतेह नहीं हो रहे हैं तो कहाँ से आप दुनिया फतेह करोगे। वो मेनली वो बातें ये कर रहे हैं कि आपको टारगेट दे रहे हैं कि इनका तो कम से कम करो, और ये सबसे आसान होना चाहिए आपकी, कि वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अगर उनको आप इमोशनली भी समझा नहीं पा रहे, वैसे तो उनको आप आइडियोलॉजिकली समझाना मुश्किल ही होगा, लेकिन अगर आप उनको इमोशनली हम्म भी समझा नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लैक तो कर रहे हो। तो आप दुनिया में तो नहीं जा सकते, फिर भी दुनिया आपकी तरफ आ सकती है, आप छोड़ते तो नहीं हो आप ऑब्वियसली। जितना मैं साहिल सर को समझाऊं, आप अपने बाप माँ को समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप बाहर नहीं जा रहे। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्टिन्यूअस खुद को अपडेट कर रहे हो ताकि वो दिखे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना लोगों को देखा है, मैं ये गारंटी देकर आपको कह सकता हूँ, अगर आप जेन्युइनली ब्लड एंड स्वेट ट्राई करते हो, बहुत ही कम होता है कि आपके जो अपने हैं, जो बिल्कुल आपके साथ है,
चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके वो ऑब्वियसली आपके बाप और माँ हो, फादर एंड मदर, वाइफ, किड्स, एनीबडी, वो अगर देखे कि आप किसी के पीछे, किसी चीज के पीछे अपने ब्लड एंड स्वेट दे रहे हो, तो या तो वो बिल्कुल आपको छोड़कर चले जाएंगे, या फिर वो आपके पर्पस में आ जाएंगे, बीच में कुछ नहीं है। हम शायद ब्लड एंड स्वेट ट्राई नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि हम कैसे करें। हम शायद ब्लड एंड स्वेट ट्राई नहीं करते, हम मार नहीं खाते, हमारा ब्लड दिखता नहीं है वो, शायद इसलिए वो नहीं करते, वो नहीं आते। शायद वो हमें चुप करा सकते हैं, इसलिए करा देते, हमने वो दिखाया कैसे नहीं होगा है भाई? वो। वो कैसे ब्लड एंड दिखाएंगे? स्वेट, आपको आपको ब्लड एंड स्वेट दिखाना पड़ेगा, आपको ट्राई करना नहीं कैसे? छोड़ना है। कैसे? आप हाँ पीटो जी। ना, आप बाहर जाकर लोगों से मार खाओ, क्योंकि आपने कुछ ऐसे। सही करने की कोशिश की थी, मार खाओ ना। अच्छा, मैं सीरियसली फिर कह आके रहा हूँ। बताऊं? आप नहीं नहीं, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात। हाँ, बाहर से एबडक्ट होने दो, तो खुद को जब मार करने खा। दो, स्टैब्लिशमेंट को अपने अपने आप को एबडक्ट करने दो, देखने दो अपने फादर और मदर को कि आप सीरियस, आप सब कुछ दे सकते हो इसके लिए। फिर अगर नहीं आते तो फिर अल्लाह को पता, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। ये तो बेस्ट है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक वाइज पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए तो आपको बागी बनने की जरूरत नहीं होती, पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत होती है और इमोशंस की जरूरत होती है। वो अगर हमारे पास नहीं है तो हमें वो डेवलप करने चाहिए, शायद हमने डेवलप की नहीं है, वो हमारी फेलियर है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। आमना सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एज अ 17 years old पॉलिटिक्स में मतलब अपना जो पार्ट है वो कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं नॉलेज क्वेश्चन भी अपना बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो इतना कुछ होता है कि पहले आप हिस्ट्री पढ़ो, आप आइडियोलॉजीज को पढ़ो, आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहो, आप क्या करो? यानी मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ? अगर आप थोड़ा सा मुझे इस बारे में बता सके तो थैंक यू सो जी मच। जी बिल्कुल, आप सीरा से स्टार्ट कर ले। पहले तो सीरा खत्म करे, कोई भी सीरा हो, 2-3 सीरा खत्म कर दे कि और डेफिनेटली सीरा पहले पढ़ना पड़ेगा। और फिर अगर आप बुक्स को, फिर आई थिंक बेस्ट होगा कि अगर आप इब्ने खल्दून, मुस्लिम के टाइम से, मतलब जो मुस्लिम जब पीक में थे, इब्ने खल्दून को, और इब्ने खल्दून को, और अगर आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हो उससे सीरा के बाद, तो मैं इब्ने खल्दून को जरूर प्रेफर करूंगा। और उससे पहले मैं प्लेटो और एरिस्टोटल को, प्लेटो को स्पेशली पढ़ना मैं पर्सनली रेफर कर सकता हूँ आपको। और रिसेंटली आप आई थिंक वो कौन है मुझे याद नहीं है, उनका सीरा सबसे बेस्ट है। इमाम अनवर अल औला की, आई थिंक, हाँ मैंने उनका सीरा पढ़ा था, इमाम अनवर अल। ये 3 लोग है, 3-4 लोग है जिनको आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि पॉलिटिक्स क्या से होते हैं। बट सीरा से डेफिनेटली शुरू करें, सीरा Um, सीरा से पहले कुछ, मेरा सजेशन यही रहे। I would also like to add here, आमना, आपका जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है वो बुक्स पढ़ना नहीं लग रहा, वो मैनेजमेंट के ज़्यादा इश्यूज मुझे आपकी बात से लगे हैं। तो आप लोग जब भी सीरा पढ़ो या कोई बुक पढ़ो, पहले आप लोग ना उसके ऊपर वीडियोस देखा करो कि बुक्स पढ़नी कैसे हैं। बुक्स पढ़ने की जो टेक्निकलिटीज़ और जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। सीरा आपने अगर ओपन करनी है या आपने तफसीर ओपन करनी है, आपके पास 3-4 इकट्ठी होनी चाहिए एक लाइन में। आप वो पढ़ते जाएं, एक एक चैप्टर सब में से उसके नोट्स बनाएं, उसके जो है ना डॉट्स कनेक्ट करें, उसके अंदर अलाइनमेंट करें। आपके पास पूरा घर में आपका जो भी सेटअप है उसमें सॉफ्ट बोर्ड लगा हो, उसमें नोट्स लगे हों, उसमें सारे आप लिंक्स क्रिएट कर रहे हो, नोट्स क्रिएट कर रहे हो, और उसके अंदर से कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो। तो जो काम करने का, जो पढ़ने का तरीका है ना, जब आप एक बुक पकड़ के बैठ जाते हो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए कि अच्छा अब ये बुक पूरी पूरी पढ़ेंगे तो अगली बुक पे जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, ये मेरे ख्याल से हमने आईएमएस में दी भी हुई हैं इसके ऊपर, बुक रीडिंग के ऊपर या किसके ऊपर प्रेजेंटेशंस। अगर नहीं दी हुई तो हम करवा देते हैं इसके ऊपर भी कि ये मैनेजमेंट कैसे हो। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों के यही मैसेजेस आते हुए देखे हैं कि अब अच्छा अब हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें।
तो अगर आप लोगों के पास यूट्यूब तो होती है, आप लोग देखा करें कि भी स्ट्रैटेजी क्या है, बुक स्किमिंग क्या होती है, बुक जो है फास्ट रीडिंग क्या होती है, कैसे नोट्स बनाने होते हैं उसमें से, कैसे आप उसको जॉट डाउन करते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हो। सो ये चीज़ें, ये टेक्निक्स अगर आपको आ जाएंगी तो आपका काम, जो एक बुक आपने महीने में पढ़नी है, वो आप एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन के ऊपर उसको लेकर आ सकते हो। सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। सो उसके ऊपर काम करें आप लोग। थैंक यू। जी, और किसी सिस्टर ने आई थिंक इब्ने खल्दून और किसी सीरा की पीडीएफ चाहिए, उन्होंने कहा था कि कैन यू प्लीज सेंड द पीडीएफ ऑफ सीरा बुक्स ऑफ इब्ने खल्दून एंड इमाम तिरमिजी का सीरा बुक तो शायद मिल जाएगा। इब्ने खल्दून ने कोई सीरा लिखा है या नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने एक बुक जरूर लिखी है अल मुकद्दिमा, वो मैं जरूर रेफर करता हूँ। जिनको भी जानना है इस्लामिक पॉलिटिक्स में, इस्लाम के उरूज के टाइम के पॉलिटिक्स के बारे में जानने का, जरूर वो बुक पर अल मुकद्दिमा। कैटेगराइज किया करें बुक्स को कि अच्छा, अब हिस्ट्री की आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स की जो फिलॉसफी है उसकी आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इनको भी कैटेगराइज करके, बहुत मैनेजमेंट अगर आप लोगों की सही होगी तो बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत इजी बल्कि इंटरेस्टिंग होगा। आप बुक्स में से निकल ही नहीं सकते अगर आपकी टेक्निक सही हो जाए तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर थैंक यू सो मच फयाज एंड आमना फॉर दैट आंसर। साद मिर्जा का सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल पहले तो एक सजेशन है, बल्कि सवाल है, इसको सवाल समझे कि एक बहन ने सवाल किया था, वो अफगानिस्तान से थी। वो कह रही थी कि हम किस तरीके से लड़कियां पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। तो आपने बोला था उसी तरीके से जो नॉर्मल साहिल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे उस्ताद मौलाना इसहाक मदनी साहब को कोट करना चाहूँगा। वो कहते थे कि इमारत जितनी बड़ी बना दो ना, उसको बुनियादें नहीं हिलाओ। बुनियादें हिलाओगे तो इमारत गिर जाएगी। तो आई थिंक औरत वाला जो मामला है, जो कुरान में भी साफ बता दिया है के पर्दे का, तो वो हम नहीं हिला सकते कि चिट चैट करें। और कुरान में जो औरत की जीनत छुपाने का बोला है, वो अगर वो अल्लाह की बातें करेगी तब भी उसकी जीनत देखेगी, शैतान की बातें करेगी तब भी देखेगी। तो अगर हम इवन आईएमएस के प्लेटफॉर्म में भी हैं, तो तब भी हमें ये चीज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनको एक्सपोजर ना दें, बंद कर दें, उनको एक्सपोजर दें, लेकिन आईएमएस उसको तरीके से लेके चले। बल्कि वैसा ना हो कि औरतों को उस तरीके से रोडों पे निकालें जिस तरीके से हमारी पिछली पॉलिटिकल पार्टीज ने किया और इनके साथ फिर बदतमीजियां होती थी। तो ये एक चीज़ है कि हमें इस चीज़ से बचना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है बाद में, और ये फिर पीछे से हमें मसला करती है। ये चीज़ जब हम आगे चले जाते हैं, फिर पीठ पीछे हमारे ये मसले होना शुरू हो जाते हैं। फ्री मिक्सिंग बेसिकली। लाइक टू आंसर दिस, अगर आप मुझे इजाज़त दें। क्या नाम, फयाज नाम है ना आपका? जी क्योंकि जी अब तो बिल्कुल बिल्कुल। बात है कि लड़की अगर रिप्लाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके लिए ना आप लोगों को हिस्ट्री, फिर से हिस्ट्री में जाएं, देखें कि उस वक्त औरतें क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी। जो लिमिटेशंस हैं वो बिल्कुल ऑब्वियसली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलना। आपकी जो भी आपके ऊपर फ़राइज़ हैं, आपने उससे बाहर नहीं निकलना। लेकिन घर में बैठ के भी आप एक दुनिया के सबसे बड़े राइटर बन सकते हो। आप इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है ना पूरी दुनिया पे, आप घर के अंदर एक कमरे में बैठ के भी ला सकते हो। तो इसकी लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं आती। जो फयाज ने बात की थी वो ये थी कि जब ज़रूरत है और कोई और नहीं है तो औरतों ने अपने आप को बचाने के लिए भी तो निकलना है ना बाहर। तो वो उस सेंस में कह रहे थे, जैसे जंगों में पहले अगर आप सीरा भी पढ़ेंगे तो औरतें भी शामिल होती थी क्योंकि ज़रूरत होती थी। तो ज़रूरत के तहत अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में आकर आपके बाप भाई और जो भी आपके घर में मर्द हैं, कोई कोई काम आपको लग रहा है कि कोई आसपास नहीं है, आप उनको परसू कर रहे हैं कि भी वो लोग जाएं और आप उनको सपोर्ट करें, तो आप वो नहीं है, आपने अपने आप को बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं निकलना है। तो एक्टिविज्म जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड्स पे आ जाओ और वो अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलो, वो बिल्कुल हरगिज मतलब नहीं है और ना ही उस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। अभी तो हम लोग घर में बैठ के जितना काम कर सकते हैं हमने वो भी नहीं किया। मैं औरतों की बात कर रही हूँ ना, तो औरतें तो हम लाइक, आई पर्सनली बिलीव कि बिल्कुल लिटरेचर और एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज और जॉब्स की हद तक हम लोग कर रहे हैं, कुछ चेंज करने के लिए कोई एजुकेशन नहीं हो रही कि कुछ चेंज किया जाए। सो अगर अब वही पूरा हो जाए तो उसके बाद नीड हो तो उसके बाद फिर आप जो है ना उसके अगले स्टेप्स लेते हो। पहले आप स्टेप्स करते हो, अपने आप को कॉम्पिटेंसी में लेकर आते हो, अपने घर वालों के ऊपर, अपने मोहल्ले, अपने रिलेटिव्स,
वहाँ पे आप जो है ना पहले अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हो। उसके बाद फिर ये एक और चीज़ होती है कि आप औरतों में रह के भी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके मर्दों को ही तबलीग करनी है, आप औरतों को करें, अपना क्लस्टर बनाएं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू बिफोर वी गो ऑन टू रोड्स। सो आई 50% एग्री विद यू एंड देन 50% आई से कि आप डू रीड हिस्ट्री एंड सी कि औरतों ने क्या क्या चीज़ें की हैं। चले चले, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं दूसरा एक क्वेश्चन करता हूँ, फयाज भाई से मुझे करना था। वो है जमात जी इस्लामी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में, कि जब एक व्हील इन्वेंट हो चुका है तो हम दोबारा व्हील इन्वेंट क्यों करें। हमारे एक भाई ने सवाल किया था, वो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स के जरिए हम क्योंकि पावर में नहीं है, ऑब्वियसली हमारे पास वो कैपिटल नहीं है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, हमारे पास इनोवेटर्स टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है अभी, या रिसर्चर्स। जाहिर सी बात है, तो हम ये चीज़ें पहले डेवलप करें साथ साथ। मैं ये नहीं कह रहा हम पॉलिटिक्स में जाना छोड़ दें, बल्कि हम एक लॉबी क्रिएट करें, जो आपने भी इसको सपोर्ट किया था। एक ऐसी लॉबी क्रिएट करें कि जो फिर ऐसी जमातों को, हम इनके एमपीएस एमएनएस को सिलेक्ट करें, उस इलाके के ऊपर इन्फ्लुएंस हमारा हो। जैसे जमींदारों का होता है, उनको हटा के फिर हमारा इन्फ्लुएंस हो, एक 17 साल के बच्चे का इन्फ्लुएंस हो, लड़के का, ठीक है। और फिर वो उस जमात को सिलेक्ट करके लेकर आए, उनसे मुआहदा करे कि ये चीज़ें हैं, आपको ये गवर्नमेंट से लाजमी डिसीजन लेने हैं, ये अमेंडमेंट्स लाजमी पास करवानी है, इसके अलावा हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर आपने इसके अलावा वोट दी, हम आपको उल्टा लटका देंगे, क्योंकि हम आपको वोट देकर लाए, हम दोबारा अपने 5 साल जाया नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। और इसकी एग्जाम्पल आपको, मैं खुद कराची से हूँ, तो मैं आपको कराची की एग्जाम्पल देता हूँ। कराची में एक पार्टी थी एमकेएम, एक अजीब खूनी इनकलाब आया, और जिस तरीके से जमींदारों के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी चली, बहुत अच्छी मूवमेंट थी। लेकिन बाद में वो चीज़ बदल गई, लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सेक्युलर थी, तो सब लोगों ने उसको इस्तेमाल किया बाद में। और फिर लोग किस तरीके से फिर भत्ताखोरियां और फिर बोरीबंद लाशें, दूसरी चीजें हुई, क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल किया। वो नौजवान वो सही रास्ते पे नहीं थे, उनको पता चल गया करना है, अब करना क्या है ये नहीं पता। वो एक्टिव तो हो गए थे, लेकिन किस तरीके से उनकी यूज करना है। तो मैं समझता हूँ जहां जहां पे ऐसा वैक्यूम मौजूद है, हमें उसको यूज करना चाहिए। उन लोगों को जमा करके, हमें अवेयरनेस फैला के, एक लॉबी क्रिएट करके, फिर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, और फिर तमाम कंट्रीज को एक करें। जैसे बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी है, पाकिस्तान में भी है। तो हम इन, आपके मुताबिक आपकी क्या राय है कि हम इस चीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कैसे कर सकते नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। आ, बस थोड़ा मेरा फर्क, मैं थोड़ा मतलब अगर मेरा डिसएग्रीमेंट तो नहीं, मैं इसमें थोड़ा ऐड ये करूंगा कि जमात इस्लामी हो या फिर कोई भी हो, तो कोई भी जमात हो, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, कोई भी हो, इनके फेलियर की रीजन बाय द वे यही थी जो आपने कहा, इनके पास लॉबी ग्रुप थी नहीं ना जो पीछे से करे। और जो कि मुस्लिम लीग की फेलियर थी कि उनके पास सिर्फ लॉबी ग्रुप्स ही थी, उनके पास जो पीपल पावर थी ना वो खत्म हो चुकी थी जैसे ही पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो। अब पढ़े तो आपको पता चलेगा, वो हिस्ट्री आप लोगों को आप लोग ने हमसे ज्यादा पढ़ी है। लेकिन आ, अगर आप देखें तो यही हुआ कि जो नॉब्स थे, जो एलिट क्लास थे, दे started suppressing because they were not, they were part of the mission because they wanted power. They didn't want the ideology to be established. I hope you know. Anyways, so coming to point, जे ठीक है, आपने जो कहा बिल्कुल वही करना है, using the street power that we have. I am a big believer. That's my belief. आप लोग disagree कर सकते हो. I'm a big believer that unless you have force on the streets backing you up, it's very difficult even to do anything sitting on the establishment. ठीक है, कुछ तो स्ट्रीट पावर आपको दिखानी पड़ेगी, मसल पावर आपको दिखानी पड़ेगी, चाहे ज्यादा लोग दिखाओ आप, ज्यादा आप चाहे वो दिखाओ, वो क्या कहते हैं, वेपन्स दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन मसल पावर तो आपको दिखानी पड़ेगी। चलानी नहीं है मसल पावर, यूज नहीं करनी हमेशा, लेकिन दिखानी तो पड़ेगी। ठीक है, ये आपको बाद में भी हेल्प कर, ठीक है, बाद में भी हेल्प करता है। कैसे कि अगर आप पाकिस्तान में हो, आपका न्यूक्लियर कहाँ पर यूज हो गई है, कहीं ना कहीं आपके पब्लिक मैंडेट मैटर करता है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ जंग में जाना चाहते हो, अगर आपके पब्लिक आपके खिलाफ है, तो वो जंग डिफिकल्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कहता जीत नहीं सकता, हार नहीं सकते, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो मैंडेट क्रिएट करना, वो नैरेटिव क्रिएट करना, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जिम्मेदारी हमेशा रही, जो जिनके सोशल प्रेजेंस बहुत जल्दी है, उनको भी आपको आपके टीम में लेना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा कि आप करो, आप सोशली
लोगों में नैरेटिव्स बिल्ड करो कि कैसे वो कर सकते, हम लोगों से वो करवा सकते जो हम करना चाहते। तो बिल्कुल लॉबी करें, लेकिन स्ट्रीट पावर भी मेरे हिसाब से मेंटेन करना जरूरी। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने पूछा कैन वी मेक अनदर पार्टी? नो नो नो, उसका कोई फायदा वैसे होना नहीं बा। आप कोई भी पार्टी बना ले, आपको स्टैब्लिशमेंट में पावर चाहिए होगा। एनीवेज ओके, रिमाइंडर, नेक्स्ट। आप लोगों का कोई भी सजेशन हो या किसी बात से भी इख्तलाफ हो या कोई सवाल ऐसा हो जो इस सेशन में एड्रेस नहीं हो सका, उसके लिए आप फीडबैक फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि चैट में बार बार शेयर हो रहा है। ओके, हारेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे सीरा से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें सबसे पहले जो है वो दावा के ज़रिए से जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। अब अगर मेरे पास एक मिक्स्ड एज ग्रुप की ऑडियंस है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि रिलीजन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर रहे हैं, फिर कुछ लोग हैं जो दीन को सिर्फ मजहब समझ रहे हैं, और मैंने उन सबको एट अ टाइम एड्रेस करना है, तो मैं उनको कैसे समझाऊं? और स्पेसिफिक वो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है, और फीमेल जो है वो पॉलिटिक्स और इन चीजों के हवाले से इतनी एजुकेटेड नहीं होती। तो अगर मैं उनको अचानक से ये कहूँ कि इनको पॉलिटिक्स में आना है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, राइटिंग वगैरह करनी है, तो वो उनके लिए अजीब सा होगा, उनका जहन घूम जाएगा कि मैं शायद उनको एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात बता रही हूँ। तो मैं ऐसी कौन सी बात करूं, ऐसी आसान फहम बात जिससे पॉलिटिक्स कितनी इम्पोर्टेंट है और वो हर एज ग्रुप का बंदा पॉलिटिक्स कर सकता है, ये ये बात कन्विंस मैं उनको कैसे करूं? कोई ऐसी स्टेटमेंट, कुछ ऐसी जनरल बात के आसान फहमी से मैं उनको ये नुक्ता उनके जहन में बिल्कुल बिठा दूं कि जैसे हमारे जहन बिल्कुल सर साहिल ने रोशन किए ना, कि अब मुझे भी फील होता है कि मैं भी पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले कर सकती हूँ। तो ऐसे उनको मैं कैसे कन्विंस करूं? क्योंकि सर साहिल को काफी टाइम से चूंकि सुन रही हूँ, तो कहते हैं कि टाइम के साथ जैसे ब्रेन वॉशिंग होती है, लेकिन उनको मैं कम टाइम में ये बात कैसे समझाऊं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है। अगर एज ग्रुप, मुझे नहीं पता आप कौन से एज ग्रुप के लोग आपके साथ है। अगर वैरायटी एज ग्रुप है तो आप को जनरल स्ट्रेटजी लेनी होगी। अगर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो कि 40s के ऊपर है, तो फिर तो डिफिकल्टी हो जाएगा आपके लिए एटलीस्ट ये फिलॉसफी उनके लिए, उनके तरफ जाना। तो आप इमोशंस यूज कर सकते। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, आप डिफरेंट तरीके से एड्रेस करते हो लोगों को। लेकिन मैं जरूर स्टार्ट यहीं से करता कि आपको करना क्या है इस दुनिया में। व्हाट डू यू वांट टू डू एंड वेयर डू यू वांट टू एंड? जब सांसें जा रही हो, अब क्या देखना चाहते हो, क्या रिग्रेट नहीं करना चाहते, और कहाँ कहाँ पर आप खुद को देखना चाहते हो, वो इमेजिन जरूर मैं सबको करवाता। मैं कोशिश जरूर करता हूँ जब मैं खुद भी लोगों से बात करता हूँ कि ये जरूर लोगों को पहले बोलूं, चाहे कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी हो, कि जब सांसें जा रही हो तो आप क्या देखना चाहते हो। ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन जिन लोगों को समझ में आती है वही मेरी ऑडियंस, जो सोचते हैं इस बारे में, चाहे वो कोई भी फिलोसफी का, कोई भी आइडियोलॉजी का, जो इस बारे में सोचता है वो ऑडियंस है। फिर आप उस वहां से आप पॉलिटिक्स रिवर्स इंजीनियर करके लेकर आओ। पहले पर्पस देकर आओ, फिर यू नो पहले आप बोलो कि ह्यूमन प्रोग्रेस बेस्ट है, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है, खिलाफत जरूरी है, खिलाफत के लिए क्या जरूरी है, ये देन सो ऑन एंड सो, अभी क्या कर सकते हैं। वो तो बात की बात है। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर उनके ऊपर ज्यादा ही आपका इन्फ्लुएंस है तो आप हुक्म कर कर चला सकते हो कि ये करो ये करो ये करो। वो तो मुझे नहीं लगता आपका होगा। ज्यादातर वॉलंटियर ग्रुप्स में वो नहीं होता, लेकिन अगर वैसा कुछ है वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है तो देन आप फिर आप मैं वही करता जो मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तलहा जुबैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
सर मेरा एक क्वेश्चन या यूँ समझो कि सजेशन लेना चाहता हूँ सर आपसे। सर मैं इंडिया कश्मीर से हूँ एंड एवरीवन इज अवेयर अबाउट द सिचुएशन हियर। तो इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरा सर कि रेवोल्यूशन और पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस है? अगर है तो काइंडली आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है सर कि अगर मैंने इधर कोई क्लस्टर बनाया हुआ है तो एज ग्रुप भी मैं बता दूं वो है 17 to 30 सर, मैक्सिमम 30। तो इन दो चीज़ों को लेकर एवोल्यूशन और पॉलिटिक्स, बट इस चीज़ को नज़र में रखना है कि द सिचुएशंस ऑफ कश्मीर को, जो यहाँ पर सिचुएशंस है उसको आपने माइंड में रखकर ये चीज़ सर मुझे सजेस्ट करना है बेटर कि रेवोल्यूशन और पॉलिटिक्स को उस क्लस्टर के सामने में किस तरह से लेके चलो, अगर इनमें कोई डिफरेंस है। थैंक यू। जी, thank you so much for your question. First of all, mashallah to your strength for whatever you are enduring. I can't even think of it. Anyone over here cannot think of it. तो जो भी आप उधर सह रहे हैं, तो उसके लिए तो hats off to you, माशाल्लाह। अल्लाह आपको आसानी दे। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, रेवोल्यूशन हो या पॉलिटिक्स हो, ये आती है आइडियोलॉजी से। फर्स्ट है आइडियोलॉजी की, आपको करना क्या, आप चाहते क्या। सो अगर आप चाहते क्या हो वो क्लियर है, इफ दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, देन रेवोल्यूशन एक प्रोसेस है। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स करने माने एडमिनिस्ट्रेशन करने की, पहले आता है फिलॉसफी और आइडियोलॉजी, उसके बाद आता है कि फैनेटिज्म, मुझे पावर में वो आइडियोलॉजी पावर में कैसे लेकर आना। उसके लिए लोग जान देते हैं, उसके लिए लोग रेवोल्यूशन करते हैं, उसके लिए लोग मतलब जिहाद करते हैं, कुछ भी करते, यू नो, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू करेक्टली, कि यस आप वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आप पावर में जाना है, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा। काफी बार आपको प्रोसेस में, ज्यादातर जो भी रेवोल्यूशंस हुए प्रोसेस में, जो सक्सेसफुली आज भी कोऑर्डिनेटेड, क्लियर एग्जांपल है दो, मैं एग्जांपल कह सकता हूँ जो आप कोऑर्डिनेटेड मतलब सक्सेसफुल हुआ है। एक आप जरूर देखे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रिसेंट टाइम में मैं कह रहा हूँ। एक है जो अमेरिका बनने का रेवोल्यूशन था, और एक है जो रिसेंटली हुआ वो कहाँ पर, और ईरान, जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। ये दो रेवोल्यूशन ऐसे है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली रेवोल्यूशन के बाद हैंडल किया था। मतलब रेवोल्यूशन बिखर नहीं गई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिखर गई थी, हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, शायद ये भी बिखर जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो तो टाइम बहुत शॉर्ट हुआ। कहीं पर भी 1971 पे बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ था, बिखर गई थी। 47 में पाकिस्तान इंडिया अलग हुई थी, बिखर गई, जल्दी बिखर गई। क्यों बिखरती है वो भी आप देख लीजिए, मिस्टेक्स कौन सी होती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता उनको, और क्योंकि रेवोल्यूशन क्लियर नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता रेवोल्यूशन के पीछे। सिर्फ रेवोल्यूशन होता है क्योंकि हमें छुटकारा चाहिए, उसके बाद क्या होगा वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट्स। और तो इसलिए प्रोसेस वो होता है, पहले तो आइडियोलॉजी क्लियर करे, फिर रेवोल्यूशन के थ्रू आप पॉलिटिक्स कर। फिर रेवोल्यूशन में क्या आप स्ट्रीट फाइट सब कुछ चाहिए, क्या आपको वेपन्स चाहिए, गन गन फाइट चाहिए, या फिर आपको लॉबी करनी पड़ेगी, या फिर सब कुछ करना पड़ेगा, वो तो बात, वो तो आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी कहाँ पर आप है, और जहां पर आप है वो वहां का स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट आप ही बना सकते। आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कौन सी बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास है, कि आप जो आपका पर्पस है उससे अचीव करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन बेस्ट क्या है, कौन सी सॉल्यूशन आप कह सकते हो कि ठीक है, ये अगर हो जाए तो ये शॉर्ट टर्म है, ये अगर हो जाए तो ये लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म करने के लिए मुझे पहले शॉर्ट टर्म करनी जरूरी है, और वाइस वर्सा। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म ही करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म ही करना, ठीक है। तो कौन सी चीज हो, ज्यादातर बेस्ट है कि आप शॉर्ट टर्म करके फिर लॉन्ग टर्म का सोचो, तो बेस्ट, ज्यादातर बेस्ट रेवोल्यूशन वही होती है। लेकिन यू नेवर नो, एनीथिंग इज, नथिंग इज परमानेंट, वो स्ट्रेटेजीज बदलते रहते, बदलते रहते, बदलते रहते। जूइश ने
जो थियोडर हर्जल की मूवमेंट थी वो लॉन्ग टर्म थी, ठीक है। ईरानी रेवोल्यूशन शॉर्ट टर्म थी, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन शॉर्ट टर्म थी। तो वो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा रेवोल्यूशन आपको लिए बेहतर होगा, सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म। लेकिन पहले फिलोसफी, फिर प्रोसेस, एंड रेवोल्यूशन इज दैट प्रोसेस कि आप कैसे पावर लो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो दोनों को मिलकर कहते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है सर। फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी से शुरू होती है और फिर रूलरशिप से खत्म होती है। तो वो पूरा प्रोसेस कैसे आप करोगे, वो आपके एरिया के ऊपर से, आपके एज ग्रुप के ऊपर से, आप डेमोग्राफिक्स एंड जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड कर कर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो। और बाकी तो आप बेहतर जानते हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो कि Much, कैसे sir. I फाइट करते, वो yes, तो I आप got a हमसे सबसे ज्यादा जानते हो। एनीवेज, need प्लीज प्लीज। small suggestion, sir. हाँ Because you प्लीज। have already running through this situation, sir. इस तरह की एज ग्रुप को मैं किस तरह से हैंडल कर सकूं ताकि एक कंसिस्टेंसी रह सके, सर? ओ अच्छा अच्छा, आपके एज ग्रुप है ना। एज ग्रुप मतलब 17 to 30 है, और जो मैं जितना आपके डेमोग्राफिक्स को जानते हो वो ऑलरेडी बहुत मतलब पैशनेट होने चाहिए जैसे जैसे जिस तरह की सिचुएशन है। तो अगर आप आइडियोलॉजी ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हो फिर तो आप खुद की स्ट्रेटजीज बनाओ। लेकिन अगर आइडियोलॉजी इंजेक्ट नहीं कर चुके हो तो फिर तो वही होगा कि आप क्या चाहते हो। आप एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट चाहते हो, क्या आप कश्मीर डिपेंडेंट मूवमेंट चाहते हो, पाकिस्तान डिपेंडेंट मूवमेंट चाहते हो, या फिर ये डिपेंड ह्यूमन काइंड को बदलने की मूवमेंट चाहते हो। आप लोग जो सफरिंग फेस कर रहे हो वही सफरिंग काफी लोग दुनिया में फेस कर रहे हो। सबके सोल्यूशन आपके थ्रू कैसे आए, वो पहले आइडियोलॉजी आपको सेट करने होंगे। और जिस तरह के एज ग्रुप ने कहा वो ऑलरेडी इंजेक्टेड होंगे इस आइडियोलॉजी को। आइडियोलॉजी ग्लोबल होनी चाहिए, मैसिव होनी चाहिए, और प्रोसेस शुरू करनी चाहिए एकदम अपने घर से, ठीक है, जैसे हमेशा से हुआ। तो मैं यही करता अगर आपकी जगह हो। तो पहले तो मैं क्लियर करता था कि मतलब मेरा गोल ही है बहुत बड़ा, मुझे लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो शुरू अपने घर से करना है, दैट्स इट। तो अगर आपके जो एज ग्रुप है वो आई थिंक मोर देन एनफ रेडी है वो लेने के लिए, वो ये चीज लेने के लिए। और जो आपके डेमोग्राफिक्स है माशाल्लाह, वो तो वैसे भी पैशनेट है ही, वो तो ज्यादा पुश करने की जरूरत भी शायद नहीं हो। थैंक यू, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ज्यादा आई होप कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मैंने कोशिश जरूर की है। बाकी आप सर, मुझसे भी बेहतर इंसान से जरूर पूछें। थैंक यू, सर। थैंक यू। अरसल बिन फैसल। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू नो कि जहाँ तक लॉबी की बात है उसमें रेगुलेशन का हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी रेगुलेट कि यार ये बंदा जो है ये ठीक जा रहा है, ये बंदा कहीं साइड ट्रैक नहीं हो रहा। अच्छा, इस बंदे को शुड बी विद अस। आई अंडरस्टैंड कि द फोर कैपिटल्स आर बिग इनफ टू डिसाइड दैट, बट स्टिल मेजॉरिटी माइनॉरिटी का वो हम कैसे रखेंगे बैलेंस? वो रेगुलेशंस क्या होंगे? हाँ वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ पर होगा, ठीक है। आपका मरकज अगर काबा है तो आपका पहले सेंटर कहाँ पर होगा जो रेगुलेट करेगा। आप हमें पहले यूनाइटेड नेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये याद रखने की जरूरत है कि आप लॉबी कर पहले यूनाइटेड नेशंस बनाए, मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब खिलाफा का सेंटर बनाए। उसके बाद आप डिफरेंट स्टेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते। और लॉबी ग्रुप यही डिसाइड करेगी, जैसे शूरा काउंसिल डिसाइड करती थी कि आपका एक चार्टर होगा और वो चार्टर के हिसाब से रेगुलेशन होता रहे कि चार्टर है, चार्टर शूरा के पास है, और वो चार्टर के हिसाब से क्या काम हो रहा है, कितना हम टॉलरेंट मिस्टेक्स टॉलरेट कर सकते हैं, वो मिस कितना वो भी क्लियरली मेंशन हो। और अगर वो हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप शूरा काउंसिल करो, आपको बैठना पड़ेगा कि क्या कर सकते, ठीक है। तो ये तो आप जब हुकूमत में आ जाओगे या फिर आपके पास पावर आ जाएगी तब कर सकते हो आप, ठीक है सर, ठीक है। ओआईसी इज अ गुड एग्जांपल कि आप ओआईसी को ही पकड़ लो कि ओआईसी आपका सेंटर है, मरकज है, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ OIC। और ओआईसी के खुद के रूल्स है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जैसे खुद के कोर्ट्स है,
उनके जो करेंसी है वो सेम है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उनके जो चार्टर्स है वो भी सेम है मोर और लेस। फिर कल्चर के हिसाब से वो बदलते रहते हैं थोड़ा बहुत। आई थिंक वो स्ट्रेटेजी भी हम फॉलो कर सकते हैं, वो बुरी स्ट्रेटेजी नहीं। अभी क्योंकि एम्पायर नहीं है, नेशन स्टेट्स ही है, तो नेशन स्टेट्स अगर उस हिसाब से करे तो उसमें गलत कुछ नहीं है। बस यही करना होगा कि हम सारे इस सिस्टम के अंडर है और हम इसी सिस्टम में काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसी सिस्टम के लोग हमें हटा सकते हैं और इसी सिस्टम के लोग हमारे खिलाफ जिहाद भी करेंगे। वो चार्टर में लिखा हो, बाकी आप खुद करें जो भी करना है। ठीक है, वो तो एक मतलब एक प्रोसेस है रूलरशिप की, लेकिन एफिशिएंट वो ही होगा कि चार्टर आप फॉलो करें कि कौन सा चार्टर है, फिर आप शुरा करें कि चार्टर में सब कुछ है तो सब फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, कब तक रिव्यू होगा कब तक नहीं होगा, वो बॉडी का कौन हो, शुरा में कौन से लोग आएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कहीं ना कहीं अल्लाह ने सूरा शुरा में कह भी दिया है कि कौन से लोग होने चाहिए जो ये डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए, किस तरह के लोग होंगे, वो उनके क्या क्या क्वालिटीज होंगे। कहीं ना कहीं अल्लाह, आई थिंक आयत नंबर 35 to 38 सूरा शुरा के 42 नंबर सूरा, वो 4 आयत अगर आप पढ़ो तो आप थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करते शूरा डिसाइड कैसे करते। फिर शूरा के लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे सब कुछ चलना चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर कैसे होगा नहीं होगा। स्टेट लेवल पे अलग शूरा होगा, सेंट्रल लेवल पे अलग शूरा होगा, मतलब शायद इसी तरह से वर्कआउट करेगा जो मेरे दिमाग में है, जो मैं विजन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, सॉरी, वो ऐसा ही कुछ है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्लस्टर किस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करते हैं ना, और बेसिकली वो मजहब को भी इतना सीरियस नहीं लेते। और लाइक मैं जब भी उनकी गैदरिंग में वगैरह में बैठता हूँ तो मैं अपने आप को इम्पोस्टर फील करता हूँ, रैदर कि मैं उनको समझाऊँ। तो उनको भी ख्याल रखना, मतलब मुझे भी चाहिए कि मैं उनको उनके मूड के मुताबिक कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे कोई टिप्स दे सकते हैं कि मैं किस तरह अपना नया क्लस्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया तो मुझे बता देना। मुझे इफ आई एम गॉट इट राइट, जिस्ट इज की मैं क्लस्टर कैसे बनाए, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। जी फयाज, वो यस। कह रहे हैं कि मैं अपने एज ग्रुप के साथ और उनमें इम्पोस्टर फील करता हूँ, तो क्लस्टर कैसे बनाना है। आई थिंक ये तो आईएमएस ने काफी टाइम एड्रेस किया है, साहिल सर ने भी काफी टाइम एड्रेस किया है कि क्लस्टर कैसे बनाते हैं। तो मैं तो नई बात कोई नहीं करूंगा, आप शुरू तो वही से करेंगे। पहले आप कजिन्स, फ्रेंड्स, अपने पास के लोग, एंड देन यू गो। बट ये तो एक बैरियर है, ये तो बिल्कुल, अगर आप इम्पोस्टर है तो कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे तो है। ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सही रास्ते में है। और ये मेरा मानना है कि अगर आप खुद ब्लड एंड स्वेट देते हो किसी प्रोसेस के लिए, तो अल्लाह आपको अबू बकर उमर दे देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। ठीक है, वो अल्लाह देते हैं, आप खुद बनाते नहीं। ठीक है, ये पहली बात। और जहां तक जनरल लोगों की एड्रेस करने की बात है, वो तो आपको कॉम्पिटेंस लेकर ही एड्रेस करना हो। ठीक है, कि आपको वो कुछ समझे, वो इक्विटी आपको शो करना है कि मेरे पास कुछ है। हमारे उस्ताद जो है साहिल सर, अगर आपको देखो तो सर साहिल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सबको ये पता है कि चाहे उनके दुश्मन भी हो, उनके पास इक्विटी तो है, पैसे नहीं, इक्विटी, मेंटल कैपिटल, मेंटल कैपेसिटी है कि वो कोई भी आर्गुमेंट किसी भी एंगल से किसी के साथ भी कर सकते। तो जितना मैं आप सबको समझाओ, आप उस उम्र में है कि आप फाइनेंशियल कैपिटल और उसकी तरफ से तो ज्यादा देख नहीं सकते सोशल कैपिटल में, लेकिन मेंटल कैपिटल में जरूर देख सकते। तो लोग जरूर ये समझे पहले कि आपके पास कुछ है, आप जो भी कहते हैं उसके पास कोई वैल्यू है। फिर भी लोग आएंगे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जब उनके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपके पास जरूर आए सॉल्यूशन के लिए कि कैसे करें, हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप मुझे बताओ, मुझे सजेशंस। कोई भी इशू, ठीक है, पर्सनल हो, जो उनके फैमिली में हो, आपके दोस्त आपके पास आने चाहिए। अगर आते हैं
इसका मतलब आपने वो स्टैंडर्ड सेट किया। तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अगर आप कोई मैसेजिंग कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, दावा कर रहे हो, अपने दोस्तों में ग्रुप में बैठे हो और कोई बातें कर रहे हो, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप कुछ भी बोलो तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। और डेफिनेटली इक्विटी के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। वो कैसे डेवलप करते हैं वो आईएमएस की ग्रुप्स में पहले भी बहुत डिस्कस हो चुके हैं। तो आप वैसे वीडियोस गो थ्रू करें, प्रेजेंटेशंस गो थ्रू करें, आपको मिल जाएगा कौन से बुक्स पढ़ने एंड ऑल दैट। लेकिन बेसिक्स वही से होता है कि आप खुद को पहले इतना डेवलप करें कि लोग आपको सॉल्यूशंस के लिए, आप जब बात करें उसके पास कोई वजन हो। और जहाँ तक बात है मतलब एकदम अपने आइडियोलॉजी के लोग पाने की, वो तो शायद मिलता है। मुझे नहीं लगता कि वो आप खुद बना सकते हो। वो अल्लाह आपको देंगे, जरूर देंगे। खुद के एक्सपीरियंस जितना मैंने किया है कि लोग आपके पास आ जाते हैं अल्लाह की तरफ से। आप लोगों के पास नहीं जा सकते जो आपके सिर्फ आपके आइडियोलॉजी में। पर जनरल लोगों के लिए तो आपको इक्विटी डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे। प्लीज। इब्राहिम इब्ने मुशीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर करना था दरअसल, इफ अलाउड हो तो। जी इब्राहिम, बट बी प्रिसाइज। जी जी बिल्कुल। एक बहन ने सवाल पूछा था कि जो लड़कियां होती हैं वो मजहब और रिलीजन के बीच में, वो दीन के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रही होती हैं, या इस तरह था उनका क्वेश्चन। उसका सबसे बेसिक आंसर जो होता है ना उनकी, वो मज़हब को परफ़ॉर्म करते इतनी ज़्यादा एक शैडो में आ चुकी होती हैं कि उनको लगता है कि जो इस्लाम है वो बेसिकली, और ये हर किसी के साथ है, खाली लड़कियों के साथ नहीं। उनको ये लगने लगता है कि इस्लाम जो है ना वो एक ऐसा मज़हब है कि जो आपको सिर्फ़ तज़किया करवा रहा है, या फिर जो आपको सिर्फ़ रिवॉर्ड्स दे रहा है। और उसका रीज़न है क्योंकि इफ़ मैं बात करूँ इंडिया की ख़ुसूसन और पाकिस्तान की भी, तो हमें बार-बार ये बताया जाता है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो पीस का रिलीजन है, पीस का रिलीजन है। जब हम बार-बार ये बात सुनते हैं, तो एक शैडो बिल्ड हो जाती है कि इफ़ अगर इस्लाम जो है ना वो पीस का रिलीजन है, तो फिर हाउ कैन वी गो, एक एक एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में कैसे जा सक रहे होते हैं। उनको ये बात जिस रोज़ समझ आ जाएगी, वो ऑटोमैटिकली अ, दीन को दीन समझने लग जाएँगे। आपने उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं डेली लाइफ़ में बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत लोगों को मैं ये चीज़ें समझाता हूँ। तो जो उनको बेसिक आपने सबसे पहले हिट करना है ना, उनको ये हिट करना है कि इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ पीस। पीस इज़ कंडीशनल विथ इस्लाम। इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ पीस, बट इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ ट्रुथफुलनेस। जब जिस रोज़ उनको ये बात समझ आ जाएगी, अगर ये मैं, क्योंकि मुझे प्रिसाइज़ करना है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके अगर चाहिए होगी तो फिर मैं वीडियो अपनी शेयर कर दूँगा। मेरा एक है मेरे पास वीडियो, वो मैं शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस रोज़ आप उनको ये ब्रेक करके बताएँगे ना, आपने उनको मिसालें देनी है, उनको बेसिकली आपने उनको ये ब्रेक कर के समझाना है कि इस्लाम रिलीजन पीस का नहीं है, इस्लाम रिलीजन है ट्रुथफुलनेस का। और पीस जो है वो इस्लाम के साथ कंडीशनल आती है। अगर कहीं पे इस तरह होगा कि कहीं खुदा न खास्ते शराब बेची जा रही है, ज़िना हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आप पीस नहीं परफ़ॉर्म करेंगे। जिस रोज़ उनको ये चीज़ समझ आती है, सडनली उनको लगता है कि ठीक है यार, इस्लाम तो एक रिलीजन है जो मज़हब नहीं है, जो दीन है। ऑटोमैटिकली दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा, अगर ये दीन है तो फिर इसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या है, वो उसके और पहलू हैं। बस मैंने इस चीज़ को एलाबोरेट करना था बेसिकली, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने खुद भी फेस करी है स्टार्टिंग डेज़ में। तो बस यही है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर कोई है मेरी तरफ से चूक, तो मुझे लाज़मी आप लोग बताएँ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर इब्राहिम। फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर दें। आप फीडबैक फॉर्म को कॉपी करके बाद में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल ज़रूर करें। ओके, वी विल टेक लास्ट क्वेश्चन। मरियम। मेरा क्वेश्चन लॉबी से रिलेटेड ही है। अभी एक भाई ने बात की थी रेगुलेशंस से रिलेटेड कि हम लॉबी के मेंबर्स को रेगुलेट कैसे करेंगे, तो वो भी काफ़ी हद तक मेरा क्लियर हो गया। बट
एक क्वेश्चन अभी भी रिमेन रहता है, वो ये कि हमें कब पता चलेगा कि अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि एक लॉबी एस्टेब्लिश की जा सके, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल को भी हम मेजर कर सकते हैं, साइंटिफिक को भी किसी हद तक कर सकते हैं, और फिर जो बात आती है पॉलिटिकल को, उसको भी, लेकिन किसी का मॉरल, मेंटल कैपिटल और जो तकवा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए कोई स्केल नहीं है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि दीज आर द राइट मेंबर्स, और अब वो पॉइंट आ गया है कि एक लॉबी इस्टेब्लिश की जा सके? दैट्स इट। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर अगर आपने पूरी तरह से, अगर ये प्रेजेंटेशन में और पूरी तरह से कॉन्वर्सेशन अगर आपने सुनी होगी, तो एक चीज क्लियर तो है कि आपने सही कहा कि तकवा का कोई स्टैंडर्ड तो हम नहीं मेजर कर सकते। ये सही बात। लॉबी स्टैब्लिश हो गई है या नहीं, ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास ओपन फील्ड होगा कि आप कर सकते हो चीज। ठीक है, कहीं पर भी आप स्टैब्लिश कर सकते हो। ये तो पहली चीज है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब अब लॉबी स्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब जेन्युइन अपॉर्चुनिटी, मतलब ये नहीं कि आपको इनसे डील करनी पड़ रही है, उनसे डील करनी पड़ रही है, उनसे भीख मांगनी पड़ रही है, नहीं। आपके पास एक्चुअली बैकिंग है। अगर आप इधर उधर पाकिस्तान में बैठकर कोई स्टेप ले रहे हो, इवन सिटिंग इन द गवर्नमेंट और क्लोज टू द गवर्नमेंट, आप कोई स्टेप ले रहे हो, आपके पास फोन कॉल आ जाता है कहीं ना कहीं से कि आप करो, बाकी हम यहाँ पर देखते हैं, वी आर हेयर, डोंट वरी, वी विल पैक इट। ठीक है, आप कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आपको, ठीक है आप भी, आपका इसका मतलब ये है कि आपका तो सर्टेन लेवल ऑफ टॉपिक डेवलप हो चुका है। और जहां तक बात है कि कौन से लोग बैठने चाहिए, अ, जैसा शूरा में, वो तो लॉबी में नहीं बैठे, वो तो शूरा में बैठे, जितना मैं समझा हूँ आपका क्वेश्चन। लॉबी में तो आप स्ट्रक्चर कर कर हर तरह के लोग लॉबी में, जिनके पास पैसा है उनके, वो भी लॉबी में बैठेंगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो शूरा में भी बैठे, जरूरी नहीं। ठीक है, ऑलराइट। प्रोफेसर्स भी लॉबी में पार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो शूरा में बैठेंगे जरूरी नहीं है। कौन बैठेंगे वो कौन नहीं, वो तो आप मेजर करोगे ना, कि आप कौन सी जगह के लिए क्या बना रहे हो, आप गवर्नमेंट कौन सी है और कौन सी जगह पर आप हो, उस जगह के लिए आपको शूरा काउंसिल कौन से होने चाहिए। सो कैन वी तो से दैट के, सॉरी, जी जी कि जो बिल्कुल लॉबी बिल्कुल। है उसके लिए 4 कैपिटल्स होना जरूरी नहीं है, शूरा के लिए जरूरी है? लॉबी के लिए भी है, लेकिन लॉबी के लिए जो है कि जो मोरल कैपिटल है ना, उसके लिए हम्म। थोड़ा बहुत वक्त दे। मोरल कैपिटल के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको वो आइडेंटिफाई कर कर उनको शूरा में प्लेस करने हो। ठीक है, लेकिन तो लॉबी जितना मैं समझाऊं कि लॉबी किसी एक इंसान में चारों कैपिटल 100% नहीं है। आप किसी एक कैपिटल में बिल्कुल प्रायोरिटाइज करके स्टैंडर्ड हाई करके ले जाते हो, बाकी कैपिटल्स आपके पास जरूर होने चाहिए, लेकिन आपका स्ट्रेंथ किसी एक कैपिटल में हो। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल, अगर उमर इब्न खत्ताब का कोई एक स्ट्रेंथ है, रदी अल्लाह अन्हु, साद इब्न मुआज का कोई स्ट्रेंथ है, उनका स्ट्रेंथ यही था कि वो लोग ला सकते। उनका सोशल कैपिटल था, उनका पॉलिटिकल कैपिटल था। मेंटल और मोरल तो बाद में बना ना, और जो इस्लाम में आने के बाद, मतलब ऑब्वियसली पहले से उनका स्टैंडर्ड तो था, लेकिन बाद बाद में जो एक स्टैंडर्ड वो लेकर गए, लेकिन उनका स्ट्रेंथ, उन्होंने अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी मदद कहाँ से, उनके सोसाइटी में पोजीशन की वजह से। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने कैसे पोजीशन, उनको भी लोग जानते थे, लेकिन उनको मेंटल कैपेसिटी की वजह से ज्यादा शायद जानते थे। तो उस्मान इब्ने अफनान रदी अल्लाह अन्हु को, उनको शायद फाइनेंशियल और मेंटल दोनों साइड ही थे उनके पास। तो एक, मतलब सहाबा से भी अगर हम एग्जांपल ले, तो चारों कैपिटल शायद सब में ही मौजूद हो, लेकिन मोरल तो उनके उनकी तरफ हम बन भी नहीं सकते, वो तो एक अलग ही स्टैंडर्ड है। लेकिन चारों कैपिटल सब में ही हो, लेकिन स्ट्रेंथ यूज शायद अलग अलग तरीके से। ये मेरा ओपिनियन है, गलत सर भी हो फिर सकता है। सर फिर शूरा को कौन, उस शूरा के जो रेगुलेशंस हैं या चेक एंड बैलेंस है, फिर वो वो तो कैसे देखा वो जाएगा? वो तो अल्लाह बता चुके हैं ना, सूरा सूरा शुरा में, हाँ। आयत नंबर 35 से 35 to 38, उन्होंने, अल्लाह ने चलिए, बता दिया मैं सूरा में कैसे मैं बताया। इसको देख लेती हूँ, ठीक है। प्लीज थैंक्स। प्लीज, थैंक ओके, यू, थैंक शुक्रिया। यू, ओके, अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khair, Fayaz, for your precious time and this enlightening presentation. आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत शुक्रिया।
IMS की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड एज वी सेलिब्रेट दिस ईद, लेट्स नॉट फॉरगेट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पैलेस्टाइन। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। may अल्लाह सुब्हानो ताला ग्रांट देम विक्ट्री एंड जस्टिस। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह ईद के बाद नए सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।